notebook with you. Okay, so that in case if you have to write anything, you can write it. And we will wait for 1 or 2 minutes. Like I can see 10 people are there. So around when it will be 20, we will start. Meanwhile, you can have your yeah, you can have your water bottle in it, because I think we are going to take it for more than 1 hour. We will try to cover everything, writing part, literature part, everything. And if you have the sample CBSE sample paper, CBSE question bank, keep it all ready. And if you have any doubt while I'm teaching, you can put it in chat box. Please share the link with your friends so that they can come and join and we can start. Okay, so I think we should start. Uh, just give me a second. I'll. Okay. Okay. So let's start. Okay. First, let's go through the syllabus once. Okay. Semester one syllabus. That is, term one syllabus. So there will be two. And correct me if I'm wrong. Correct me, because I'm disconnected with CBSE now. So there will be two unseen passages. 8 plus 6 marks. Okay. And then there will be writing part, which will be notice or advertisement. So that is going to be of 3 marks. Okay, so 14 plus 3. Then there will be letter to editor, which you all have done in grade 10. A lot of practices you have done in grade 10. So that is going to be of 5 marks. So letter to editor or article. Okay, so if you are not very very confident in one part, then the second part is going to be easy for you. Next one, in literature, we have three main chapters, prose chapters from Flamingo, Last Lesson, Lost Spring, Deep Water. Okay, so you need to remember, you need to memorize all the names of the writers, especially of the poets. There are three poems: Mother at 66, My Mother at 66, which has been written. Can you put it in? Can anyone put it in chat box? Who has written this poem, My Mother at 66? She's an Indian writer, Indian poetess. Put it in chat box. Who has written the poem, My Mother at 66? You need to remember this, because that is part of your syllabus. So you need to memorize the names of the writers. My Mother at 66. Who has written it? Can anyone tell? Okay, Kamla Das. Yes, Kamla Das. She is absolutely right. She is from Kerala, Kamla Das. And since we are coming, I'm talking about the state. There is one writer who is from Odisha. Does anyone know the name? Not poet. She is not a poet. She is from prose part. Who is that? One writer from Anish Jung. Yes, very good, Isa. Anish Jung. Yes, absolutely right. Anish Jung has written the part Lost Spring. Yes, very good. So, an elementary school. An elementary school has been written by Stephen Spender. Okay, remember this name, because this may be a bit unusual name. Stephen Spender, a British poet. Okay, Stephen Spender. And Keeping Quiet has been written by Pablo Neruda. Okay, Pablo Neruda has written Keeping Quiet. Now, from your Vistas, two chapters are coming: the third level and enemy. Okay. So this is all about syllabus. Let's continue. Let's start reading. Let's start. So for the unseen passages, I don't think there is anything to teach. There are few tricks only. The few tricks that you will use in every MCQs: elimination method. Eliminate. If you are not sure about an answer, suppose there are four answers, you don't know the right answer,
So first start eliminating. Okay, this one is definitely not going to be the answer. This one cannot be the answer. Okay. Then if one or two answers are left, put it in the option, whether it is matching or not. Okay. And then this is how you can make a guess. First eliminate that these are definitely not the answers, then you can choose, okay, this can be the answer, then try to put it in the, with the text whether it is suitable or not, and then try to find the answer. Then notice writing. So in notice writing, what is important? The structure. The structure is very important. It is of 3 marks. 1 mark is if it would have been writing paper, 1 mark would be for structure, 1 mark for format, sorry, 1 mark for grammar, and 1 mark for content. So in notice writing, first you need to make a box. On the top of it, you will write the name of the institution. Now this is very important. Name of the institution. It can be name of a school, it can be name of a society, it can be name of a company. And why we write it? I saw somewhere this question was asked, that why we write the name of the institution, or why we write the name of the society. Because if you will write the name of the concerned society or name of the concerned institution, people of that institution will read it. They will see that, okay, this is for my institution, this is for my society, this is for my school. They will read it. So that's why we so to draw the attention of the people of the concerned area. It may be school, it may be institution, it may be coaching, it may be society. For example, if there is a power cut, you live in a residential society and there is a power cut, it has been, a power cut has been scheduled. So what you will do? You will put a notice, and in that notice, on the top of the place, you will write the name of that society. For example, Residents Welfare Association. Okay, Balaji Homes, along with the address. For example, I live in Balaji, so Balaji Homes, Chennai. Write the name plus name of the town also. This is important. Name of the institution plus name of the town. These are the two things that you have to do. That means first line. In second line, you have to write notice. First, name of the institution. Why we write it? So that we can draw the attention of the concerned department or concerned people. Second, we write notice. Now, notice is written in small letters or capital letters. Who can tell me? All the letters will be small or capital. Put it in chat box. So we write notice, Notice. We write Notice. Now I want to know whether it will be in capital or small. Yes. And then we write the date. Okay. Date we write in the left corner. We write that in left corner. We will write now. Now I saw this question also. Which format is correct for date? Okay. Yes. All of you are giving the right answer. Capital. Notice. All of that will be in capital letters. Now the correct format for writing date. Okay. So let's say first one is, for example, today is 2nd December. So how I can write? 2nd of December, comma 2021. That is one method. And put it in chat. 2nd of December 2021. This is one method. Another method is December 21st, 2021. Okay. This one is one. Then 21st December 2021. These are the methods. Yeah. Kashish, you have to put a comma. After 30 Agrawal, you will put a comma. After the name of the month, you will put a comma. So these are the 3 methods which you can use for writing that. You cannot write like that. 0 to 12, 21. No, this is wrong. You cannot write like that. 0 to 12, 20, 21. These are incorrect. Don't use this. 2nd of December 21, 2nd December 2021, December 2nd 2021. Oh, I have written 21st of December. Okay. Just ignore that. It is 2nd of December. So these are the 3 methods which are allowed. Then after the date, you will give the heading.
Now, why we need to give heading? Now we have drawn the people of a particular society or particular student. Now, heading will be required so that people will know that this notice is about which topic. For example, in my society, if water supply is going to be interrupted for 2 hours, 5 hours, 10 hours, my heading will be disruption of water supply. So that the people who are interested about water supply, they will read that notice. Okay. So your heading should be something that should be informative. Now, what do you mean by informative? Informative मतलब होता है कि वो जो बाकी जो कंटेंट है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन देना चाहिए कि हेडिंग देख के यू कैन अंडरस्टैंड दैट दिस नोटिस इज रिलेटेड टू दिस पॉइंट. Okay, and then you will start writing your notice. So you can start, all the member, no greeting. Remember, no greetings. It's not like that. Hello everyone, how are you? No, not allowed in notice. Namaste everyone, not allowed. No, if you are from Tamil Nadu, vadakkam, nothing. It is not allowed. You have to be strictly, formal. You will simply write all the residents, all the students. No, yeah, it is to be notified to all the residents. It is to be notified to all the students like this. No greeting, no hello, no hi, nothing. Remember this. So this will be the starting. It is to be notified. All the students, all the residents are, notified that something like that. You will start like that. Okay. Now, and then you will end. You will write the designation. You will write name, and you will put your signature. These are the three things: name, designation, signature. ये तीन चीज लास्ट में आएगा. जब तुमने नोटिस कंप्लीट कर लिया, एक लाइन छोड़ के फिर ये तीन चीज लिखना है. आई एम रिपीटिंग अगेन: नेम, designation, and signature. Suppose if I am writing a notice, and if I am the secretary of the society, so what I will put my signature, I will write my name, and I will write secretary of this society. और क्या क्या इंफॉर्मेशन देना होता है? रेलिवेंट इंफॉर्मेशन देना है नोटिस में. फॉर एग्जाम्पल, आई वाज टॉकिंग अबाउट पावर डिसरप्शन. सो आई विल टेल कि टाइमिंग बताऊंगा कि इतना से इतना देर तक पावर कट होगा. ठीक है, किस डेट को होगा, कितना से कितना टाइम तक होगा, और किस लिए हो रहा है. ये जो पावर डिसरप्शन हो रहा है, जो पावर कट हो रहा है, वो किस रीजन की वजह से होगा. तो रीजन बताना है नोटिस का. अगर टाइम बताना है उसमें तो टाइम बताओ, डेट बताना है तो डेट बताओ. दिस इज हाउ यू राइट अ नोटिस. अब अगर किसी को कुछ डाउट है तो यू कैन पुट इट इन चैट बॉक्स रिलेटेड टू नोटिस, अदरवाइज वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. ठीक है, रिमेंबर यू हैव टू बी वेरी फॉर्मल. कोई ग्रीटिंग्स नहीं होगा. हेलो, हाय, नमस्ते, ग्रीटिंग्स, गुड मॉर्निंग, कुछ भी नहीं लिखना है उसमें. पहले नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, फिर नोटिस इन कैपिटल, फिर डेट का 3 फॉर्मेट मैंने बता दिया, फिर हेडिंग, फिर योर कंटेंट. कंटेंट में 3 चीज इंपॉर्टेंट है: डेट, टाइम, रीजन. ठीक है, ये 3 चीज इंपॉर्टेंट. यू आर गोइंग टू पुट दिस 3 थिंग्स. उसके बाद आता है आइदर यू कैन राइट नोटिस. Questions will be related to notice. It will, of course, it will be in form of MCQ, or it can be in form of advertisement. So advertisement में पहला चीज, again you will give heading. Now headings can be of different type: to let, sale, it can be related to vacancy, it can be related to I think rent we have already talked about. Sale हमने बात कर लिया है. पेट्स से रिलेटेड हो सकता है. तो जो भी हेडिंग होगा वो मैक्सिमम 3 वर्ड्स में होगा. मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं देना है. मैक्सिमम 3 वर्ड्स. लाइक सेल, बाइक फॉर सेल, कार फॉर सेल, रूम ऑन रेंट, 3 BHK ऑन रेंट, और यू कैन सिंपली पुट रेंट. नो, यू हैव टू पुट इट लाइक दैट. और इसमें एक चीज, यू डोंट हैव टू राइट एंटायर सेंटेंस. तुमने हेडिंग दे दिया, उसके बाद स्टार्ट करो. स्टार्ट में क्या देना है कि किस चीज से रिलेटेड है. For example, if you are selling bike, तो क्या बोलोगे? A Bajaj Pulsar 2017 model, black in color, is available for sale. पहला जो सेंटेंस होगा, that will contain the main information. उसमें मेन इंफॉर्मेशन देना. ठीक है. If there is a vacancy, so you can write like Sun International School requires teachers for English, SST, and Hindi.
मेन इंफॉर्मेशन पहले लाइन में जाएगा। सेकंड में उसका क्वालिटी, अगर तुम बाइक सेल कर रहे हो तो क्या क्या उसका क्वालिटी है। एंड डोंट राइट फुल सेंटेंसेस। ऐसा नहीं द बाइक इज इन ब्लैक कलर, इट इज इन वेरी गुड कंडीशन, नो नॉट लाइक दैट। कैसे लिखना है, मिंट कंडीशन कॉमा फ्रेज यूज करना है, सेंटेंस के बजाय फ्रेज यूज करना है। मिंट कंडीशन कॉमा ब्लैक इन कलर कॉमा गुड माइलेज कॉमा सिंगल हैंडेडली यूज कॉमा रन फॉर इतना कॉमा। ऐसे लिखना है नोटिस एडवर्टीजमेंट। यू डोंट हैव टू राइट द फुल सेंटेंस, पूरा सेंटेंस नहीं लिखोगे तो फिल इन द ब्लैंक्स आएगा ना कि सपोज कंटेंट लिखना है तो क्या क्या, तो जो फ्रेज में लिखा होगा उसी को चूज करना। और फिर एंड में लास्ट में, सबसे लास्ट में कौन बताएगा, एडवर्टीजमेंट के लास्ट में सबसे लास्ट में क्या लिखते हैं, लेट मी सी, जस्ट पुट इट इन चैट बॉक्स, एडवर्टीजमेंट के लास्ट में क्या लिखते हैं। मीनवाइल आई एम रिवाइजिंग, एडवर्टीजमेंट सबसे पहले हेडिंग को छोटा रखना है, देन ये किस चीज से रिलेटेड है वो लिखना है, जैसे बाइक सेल है, रूम ऑन रेंट है, वैकेंसी है, क्या है वो लिखना है। और यू हैव टू यूज फ्रेजेस इंस्टेड ऑफ होल सेंटेंसेस। या सुजल इज राइट, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, दैट विल बी द लास्ट थिंग। लास्ट में क्या लिखना है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स लिखना है लास्ट में, ठीक है। वो हो गया। फिर एडवर्टीजमेंट हमने डिस्कस कर लिया। लेटर टू एडिटर, फॉर्मेट पहले क्या लिखना होता है, who can tell me, letter to editor or in any formal letters you में से पहले जाता है सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस 2 to 3 लाइन्स, 2 से 3 लाइन में सेंडर्स एड्रेस लिख देना है। फिर लीव 1 लाइन देन डेट एंड सेम फॉर्मेट दैट आई टोल्ड यू फॉर डेट, वो जो 3 फॉर्मेट मैंने बताया था डेट लिखने के लिए, वही 3 फॉर्मेट यू हैव टू यूज, उसके अलावा कोई फॉर्मेट नहीं। तो अगर पूछता है कि कौन सा फॉर्मेट सही है, देन यूज दैट फॉर्मेट, ओके। 3 ही में से वही चूज करना। देन अब हम टू नहीं लिखते, रिमेंबर, टू द एडिटर नहीं लिखते, वी डायरेक्टली राइट द एडिटर, द मैनेजर, ऐसे लिखते, डायरेक्ट हम वो लिखेंगे। नाउ नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू हैव इज द एडिटर, नेम ऑफ द न्यूज़पेपर, किस न्यूज़पेपर को लिख रहे हो उसका नाम लिखना है। फॉर एग्जाम्पल द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस। एंड रिमेंबर न्यूज़पेपर के नाम के पहले द लगा होना चाहिए। ऑप्शन में अगर द नहीं दिया है क्रॉस कर दो, मोस्ट लाइकली दैट इज नॉट गोइंग टू बी देयर। एंड देन रिसीवर्स एड्रेस, वो न्यूज़पेपर का है, तो आई डोंट थिंक दैट इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। देन सब्जेक्ट, नाउ देयर इज वन प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू ओल्ड फॉर्मेट हम पहले सब्जेक्ट लिखते थे, फिर रेस्पेक्टेड सर या रेस्पेक्टेड मैम लिखते थे। अकॉर्डिंग टू न्यू फॉर्मेट अब हम क्या करते हैं, डियर सर और डियर मैम, और फिर सैल्यूटेशन लिखने के बाद सब्जेक्ट लिखते हैं। एंड सब्जेक्ट शुड बी शॉर्ट, अगेन इट शुड बी इंफॉर्मेटिव, जस्ट लाइक नोटिस, कि सब्जेक्ट पढ़ के हमको आइडिया मिल जाए कि किस चीज के बारे में ये है, ठीक है, ओके। तो सब्जेक्ट तुम्हारा ऐसा, इट शुड नॉट बी काइंड ऑफ अ सेंटेंस, इट शुड बी काइंड ऑफ अ फ्रेज। फॉर एग्जांपल इफ यू आर राइटिंग अबाउट डिफेक्ट्स ऑफ ऑनलाइन क्लासेस, तो उसी में आधा कंटेंट, आई हैव सीन स्टूडेंट्स राइटिंग हाफ ऑफ द कंटेंट देयर ओनली, my eyes are swelling, my eyes are paining, my eyes are getting watery because of online classes. No, not like that. Simply write defects of online classes, problems faced during online classes, ऐसे लिखना है। पूरा राम कहानी सब्जेक्ट में नहीं लिखना है, जो मेन रेलिवेंट पॉइंट है ओनली दैट थिंग यू हैव टू राइट। एंड डोंट राइट इन सेंटेंस, फ्रेज के फॉर्म में, ग्लोबल वार्मिंग, चाइल्ड लेबर इन इंडिया, ऐसे लिखना होता है। और सब्जेक्ट वही चूज करना जो इंफॉर्मेटिव हो, जिससे तुम्हारा पूरा कंटेंट के बारे में आइडिया मिले, दैट विल बी इंपॉर्टेंट। देन पहला पैराग्राफ इज फॉर इंट्रोडक्शन, रिमेंबर लेटर टू एडिटर, फर्स्ट पैराग्राफ इज फॉर इंट्रोडक्शन, ओके। सेकेंड पैराग्राफ डिस्कस द प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन इन डिटेल, एंड थर्ड पैराग्राफ इज सॉल्यूशन। थर्ड पैराग्राफ सॉल्यूशन है, मतलब कि अगर ये करेंगे तो हमारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा, और फिर उसको रिक्वेस्ट करो एडिटर को कि आप मेरा जो लेटर है उसको प्रिंट कर दो। वन मोर मिस्टेक, कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं, वी राइट कि प्लीज राइट एन आर्टिकल अबाउट इट। अगर ऑप्शन में ये दिया हुआ है कि तुम लास्ट पैराग्राफ में क्या लिखना है, रिक्वेस्टिंग हिम टू राइट एन आर्टिकल, रिक्वेस्टिंग टू करेक्ट योर आर्टिकल, रिक्वेस्टिंग टू पब्लिश योर आर्टिकल, रिक्वेस्टिंग टू
Yeah, Neda, I will explain that figure speech. Your relevant, we will. When I will come to the literature part, I'll explain it. Okay. So that we will, so the correct option will be requesting him to publish your letter. एडिटर का काम क्या है? अगर उसको लगेगा कि ये लेटर अच्छा है, रेलिवेंट है, इससे लोगों को अवेयरनेस क्रिएट होगा, ही विल पब्लिश द लेटर. उसका काम बस पब्लिश करना, उसका काम बैठ के लेटर लिखना नहीं है, उसका करेक्शन करना नहीं, वो हम टीचर्स लोग का काम है, करेक्शन करना सर्कल कर करके. ठीक है. सो लेटर टू एडिटर, एडिटर को क्या बोलना है? सिर्फ रिक्वेस्ट हिम टू पब्लिश द लेटर, दैट्स ऑल. लेटर टू एडिटर हो गया. फॉर्मेट याद रखना, सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, सैल्यूटेशन, सब्जेक्ट एंड कंटेंट. लास्ट में योर्स, लास्ट में क्या लिखेंगे? लास्ट में क्या लिख सकते हैं? योर्स सिंसियरली, योर्स ओबीडियंटली, अ कंसर्न सिटीजन. डोंट राइट योर्स ट्रूली. नहीं भाई, ही इज नॉट योर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड कि तुम ये लिख दो कि योर्स ट्रूली, योर लविंग, योर केयरिंग. नो, वो keep your romance out of the letter. Okay, so this is how you write letter to editor. Now let's come to literature. Okay, तो सबको एक बुक लेके बैठ जाओ, पानी वानी लेके, नोटबुक लेके, पेन वेन लेके सब बैठ जाओ. We are going to, and how I'm going to teach literature through the CBSE sample paper, CBSE question bank. I'll discuss the question along with the answer, along with the story. Okay, we are not going to, faithfully, yeah, faithfully चलेगा. Yes, articles, yes, Sujal is right, articles. So articles में heading, ठीक है, आर्टिकल्स में हेडिंग इंपॉर्टेंट है. वो आई कैचिंग होना चाहिए, मतलब इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए कि देख के उसको पढ़ने का मन करे. कुछ ऐसा अब हेडिंग होना चाहिए. तो जो तुमको ऑप्शन आएगा कि कौन सा हेडिंग सुटेबल है, तो पहले तो देखना है कि कौन रेलिवेंट है, कंटेंट से रिलेटेड है, और कौन आई कैचिंग है, मतलब थोड़ा अट्रैक्टिव लगना चाहिए. ठीक है. जस्ट लाइक इफ यू गो टू अ पार्टी, you try to dress nicely so that people will come and talk to you. ऐसा नहीं कि ठंडी का दिन है तो एक हफ्ते नहाए नहीं पहुंच गए, वैसा नहीं होता ना. We get ready, then we go, so that people will take notice of you, people will talk to you, people will come near to you. Similarly आर्टिकल का जो हेडिंग होगा वैसे ही होना. समझ जाओ तुम आर्टिकल को पार्टी में भेज रहे हो तो थोड़ा डेकोरेट करके उस अच्छे से आई कैचिंग करके भेजना. और फिर उसमें क्या क्या करना है? पहला तो तुमको हेडिंग डालना है. फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन, टॉपिक क्या है उसके बारे में लिखो, डिफाइन करो. और आर्टिकल में यू हैव टू राइट अबाउट बोथ द पॉइंट्स, गुड पॉइंट्स, बैड पॉइंट्स. यू हैव टू मेक अ बैलेंस. ऐसा नहीं कि सिर्फ पॉजिटिव लिखे जा रहे हैं या सिर्फ नेगेटिव लिखे जा रहे हैं. ठीक है, मेंटेन अ बैलेंस. बैलेंस बना के रखना है कि तुम पॉजिटिव भी लिख रहे हो, नेगेटिव भी लिख रहे हो. ठीक है, you are a neutral person. When you are writing an article, you are neutral. When you are doing debate, you are not neutral, you are biased. या तो तुम पॉजिटिव हो या तुम नेगेटिव. आर्टिकल में तुम दोनों, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों. तो बैलेंस बना के रखना है. कॉज और इफेक्ट के बारे में लिखना है कि ये किस लिए होता है, इसका इंपैक्ट क्या पड़ता है, दैट यू विल राइट. और लास्ट में जो कंक्लूजन पैराग्राफ होगा उसमें जो जो चीजें तुमने डिस्कस किया है उससे रिलेटेड चीजें लिख दो. कि ऐसा करने से ये सब चीजें सॉल्व हो जाए. दैट्स ऑल. पहले हेडिंग, दैट शुड बी वेरी वेरी अट्रैक्टिव. ओके. सेकंड, डिफाइन करो टॉपिक को, थोड़ा सा एक्सप्लेन करो. ठीक है, कॉज और इफेक्ट बताओ कि क्यों होता है, कैसे होता है. फिर उसके बारे में एक बैलेंस्ड व्यू दो कि ना ज्यादा पॉजिटिव बात कर रहे हो ना ज्यादा नेगेटिव बात कर रहे हो. 50-50, ट्राई टू राइट 50-50. यस यस, लिटररी डिवाइस एंड पॉजिटिव, वी आर कमिंग टू दैट. एंड देन कॉजेज एंड इफेक्ट एंड सॉल्यूशन, और जिसको हम कंक्लूजन बोलते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट लिटरेरी डिवाइसेस. ओके, तो पहला स्टार्ट करते हैं एनाफोरा से. ओके, पहला क्या हो गया? एनाफोरा. एनाफोरा इज, दिस वाज, यू कैन पुट इट इन चैट बॉक्स. ठीक है, बस मेरे को ये बात बता दो कि एनाफोरा होता क्या, तब तक मैं तुमको एक और एग्जांपल देता हूं. एनाफोरा वाज यूज्ड इन द पोएम Fire and Ice in grade 10. In one poem, yeah, in Fire and Ice, it was used, or in ball poem also it was used, anaphora. Can anyone tell me what is anaphora? And if you want to see the example in your current book,
open the chapter, open the poem, keeping quiet. Keeping quiet. Keeping quiet, I think it has been used. Now, yes, somebody is telling yes. Khushi is right. She is absolutely right. Anaphora is when two or more than two lines start with the same word. अगर दो फ्रेज है, दो क्लॉज है, दो लाइन्स है जो सेम वर्ड से स्टार्ट होता हो, जैसे एक बहुत फेमस डायलॉग है जूलियस सीजर का, ही केम, ही सॉ, ही कंकर्ड. ही केम, he saw, he conquered. Both of these three clauses, sorry, both I'm telling, all of these three clauses, they are starting with the same word, he. He came, he saw, he conquered. Okay. This is example of anaphora. Clear hai? Two phrases, two clauses, two sentences starting with the same word, that is called anaphora. Like, okay, let me see if it is in the poem. एक बार बताओ तो कोई है उस पोएम में क्या ये कीपिंग क्वाइट में? आई थिंक उसमें यूज हुआ है कीपिंग क्वाइट पोएम में. कहीं हुआ है ये? आई विल जस्ट चेक इट. So that will be anaphora. Next one is alliteration. Yeah, in keeping quiet, second stanza. Let's not speak in any language. Let's stop for 1 second. Both the sentences are starting with let's. So that is anaphora. Next is alliteration. So alliteration, in chat one, somebody has put this line: we will, and from the same poem, sudden strangeness. तो एक ही लाइन में, एक ही सेंटेंस में, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट डिफरेंट सेंटेंसेस, इन वन सेंटेंस, वन, नॉट इवन सेंटेंस, वन लाइन, if there are two or more than two words starting with the same letter, जैसे sudden strangeness, ये एक ही लाइन में है, sudden और strange, both of them are starting with the letter S, so this is the example of alliteration. This is alliteration. Okay, this is called alliteration. जब एक ही सेंटेंस में दो लाइन हो या दो से ज्यादा भी हो सकता है, सेम लेटर से स्टार्ट हो, ओके, देन इट विल बी कॉल्ड alliteration. जैसे लास्ट पैराग्राफ देखो, उस पेज पे, उसी पेज पे लास्ट पैराग्राफ, दैट विल बी फोर्थ पैराग्राफ. लुक एट हिज हर्ट हैंड्स. हर्ट हैंड्स, सो बोथ द वर्ड्स आर स्टार्टिंग विथ H and H. They are starting with the same letter. So that is another example of alliteration. So we have discussed alliteration, we have discussed anaphora. Now one is imagery. Yeah, my mother, we would, yes, you may say they are alliteration. Very good, Isa. Then imagery. Now imagery क्या है? जब तुम कुछ लाइन पढ़ रहे हो और वो इमेज तुम्हारे दिमाग में आने लगे. Yes, total inactivity, no, that won't be alliteration. Okay, so when you are reading a line और अचानक से तुम्हारे दिमाग में क्या होने लगे, वो ऐसा इमेज बैठने लगे, ठीक है, इमेज बैठने, वो इमेज आने लगे, और ये मैक्सिमम हो रहा है तुम्हारा माय मदर एट 66 पोएम में. उस पोएम को जब हम पढ़ते हैं तो बहुत सारा इमेज हमारे दिमाग में आने लगता है, ठीक है. कैन एनीवन, तुम लोग बताओ कौन कौन सा इमेज आता है जब वो तुम पोएम पढ़ते हो? किसी को याद है कोई इमेज आता है जब वो तुम पढ़ते हो? माय मदर एट 66. उसमें इमेजरी यूज हुआ है, ठीक है. देन यस, मेरी चिल्ड्रन, यू नो, स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स. वो जब हम लाइन पढ़ते तो क्या होता है? यस, आशुतोष आल्सो राइट, सेपरेटिंग फ्रॉम, व्हेन यू नो दे आर, यू नो, मदर इज वन साइड ऑफ द airport and the daughter is entering, that separation, that is also coming. Children, you know, playing, trees sprinting. ट्रीज स्प्रिंट, जब हम ट्रेन में चलते तो लगता था ना कि कार, हम जैसे हम रुके, हम चल रहे हैं, कार रुका हुआ है, ऐसे कुछ फीलिंग आता था, ऐसे लगता था ट्रेन, हम
ट्रेन में है और वो पेड़ क्या हो रहा है, जंप कर रहा है, तो वो सारा इमेज आ रहा है, तो वैसे चीज को बोलते हैं इमेजरी। ठीक है, तो इसी पोएम में ज्यादा यूज हुआ है इमेजरी। ठीक है, नाउ देयर इज सिमिली एंड मेटाफर। सिमिली एंड मेटाफर बोथ अब हैव द सेम यूज, दोनों का यूज सेम है। दोनों का यूज हम करते हैं कंपैरिजन करने के लिए। सिमिली भी यूज होगा कंपैरिजन के लिए, मेटाफर भी यूज होगा कंपैरिजन के लिए। डिफरेंस क्या है? बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। सिमिली में एज और लाइक लगा होगा। ठीक है, व्हेन यू आर डूइंग कंपैरिजन, ठीक है, उसमें एज और लाइक लगा होगा। नाउ आई एम अगेन ड्रॉपिंग विद द हिंट, द एग्जांपल इज गिवन इन माय मदर एट 66। माय मदर एट, अब तुम लोग मेरे को खोज के बताओ कि कहां सिमिली यूज हुआ है उस पोएम में। सो उसमें क्या होगा, सिमिली में क्या होगा, टू थिंग्स विल बी कंपेयर्ड एंड the comparison will be done using as or like. For example, she is as brave as a tiger, or tigress you may say. She is as brave as a tigress. So we are comparing a girl with tigress using the word as. Okay, yes, Sakshi and Isha face SN like that of a corpse. तो उनके फेस को किससे कंपेयर किया जा रहा है? डेड बॉडी से। कॉर्प्स मतलब होता है डेड बॉडी से। यस, पेल एज अ लेट विंटर्स मून, तो उनके फेस को अगेन लेट विंटर मून से कंपेयर किया जा रहा है एज लगा के। तो इन दोनों में क्या हुआ है? सिमिली यूज हो रहा है। मेटाफर क्या है? इसमें भी कंपैरिजन होगा बट विदाउट यूजिंग एज और लाइक। विदाउट यूजिंग एज और लाइक। फॉर एग्जांपल, सी इज अ टाइगर। ओके, सी इज अ टाइगर. For example, if somebody has got some girl has got a long hair, what you can say? She is Cinderella. If somebody is very spiritual, very calm, what you can say? This guy is the Gandhiji of our class. So you are comparing, but without using as or like. बिना as or like के तुम comparison कर। Yes, Sanskrit is giving the definition. Simile is use of like or as. Now, मेरे चिल्ड्रन स्पेलिंग, दैट इज इमेजरी। वो इमेजरी है, उसमें इमेज आ रहा है। जब हम वो लाइन पढ़ते तो हमारे दिमाग में वो इमेज आ जाता है। सो दैट इज सिमिली एंड मेटाफर। नेक्स्ट वन इज और क्या क्या हो सकता है तुम्हारे बुक में? आई थिंक ऑक्सीमोरोन इज नॉट गिवन। ऑक्सीमोरोन तुमको नहीं पढ़ना है। ऑक्सीमोरोन बेसिकली क्या होता है? जब टू अपोज, पर्सोनिफिकेशन। यस, पर्सोनिफिकेशन, वेरी गुड। Personification means when you are giving characters of human beings to a non-human thing. जब तुम ह्यूमंस के कैरेक्टर को, जैसे पेड़ है, जैसे एक बर्ड है, बर्ड को बोल रहे वाह व्हाट अ मेलोडियस सॉन्ग शी इज सिंगिंग, कि कितना मेलोडियस सॉन्ग है इसका। तो ठीक है, तो बर्ड्स तो गाना नहीं करते, उनका तो नेचुरल वॉइस है, वही वॉइस है। ठीक है, बट फिर भी हम क्या बोल रहे हैं कि गाना गा रही है वो। तो ह्यूमंस का कैरेक्टर है, ये हम किसको दे रहे हैं? नॉन ह्यूमन को। जैसे माय मदर एट 66, उसमें लाइन है यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, ट्रीज जंप कर रहे हैं। ट्रीज क्या कर रहे हैं? जंप कर। तो ट्रीज तो जंप नहीं करते, दीज आर द क्वालिटीज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। वहां भी क्या हो गया वो तुम्हारा? दैट इज पर्सोनिफिकेशन। दैट इज पर्सोनिफिकेशन। नाउ पैराडॉक्स इज irony. Irony, yeah, irony is whatever is being said, the situation is opposite of that. ठीक है, इसके एग्जांपल पे मेरे को हंसी आ जाता है, क्योंकि आई जनरली गिव माय ओन एग्जांपल। आयरनी मींस बोला जाए कुछ और सिचुएशन हो कुछ और। ठीक है, जैसे एक बहुत फेमस पोएम है जिसमें बोला गया है वाटर वाटर एवरीवेयर बट नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। पहले लाइन में क्या बोला जा रहा है? कि हर जगह क्या है? वाटर है, चारों तरफ वाटर क्या है, बट फिर रियलिटी क्या है? कि पीने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं बचा है पीने के लिए। ठीक है, दैट इज कॉल्ड, दैट इज आयरनी। तुम्हारे चैप्टर में कहां पे यूज हुआ है? बेसिकली मेन जो यूज है वो है साहेब के नाम में, साहेब ए आलम। हिज नेम इज
साहेब ए आलम, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। नाम का मीनिंग क्या हुआ? लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। बट रियलिटी क्या है? दैट ही इज अ वेरी पुअर गाय। जो लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स है वो क्या कर रहे हैं? गार्बेज कलेक्ट कर रहे हैं। सो दैट इज आयरनी। I give my example like my name is Mohit. Mohit means people who get people, getting infatuated, people getting attracted. But आज तक कोई हुआ ही नहीं. So that is irony. There is irony in my name. मतलब जो बोला जाए, जो मीनिंग कुछ और निकले, बट रियलिटी क्या है उसका कंप्लीटली अपोजिट हो, तो दैट इज कॉल्ड आयरनी। ठीक है, अब जरा सोच के बताओ तुम लोग, और कहीं है तुम्हारे चैप्टर में, किसी चैप्टर में आयरनी यूज हुआ है? ओके, देन समरी रिपीटिशन। रिपीटिशन मतलब एक ही लाइन में क्या हो, एक वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे देयर इज अ वेरी फेमस नॉवेल, फार फार फ्रॉम मैडिंग क्राउड। फार फार फ्रॉम मैडिंग क्राउड। आसो ज्योग्राफी क्या है? सिंबोलिज्म। नो, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट सिंबोलिज्म। आई डोंट थिंक इट इज पार्ट ऑफ योर सिलेबस। सिंबल्स मतलब एक किसी चीज को डीपर मीनिंग में यूज किया जाए, या यू मे से दैट जैसे हर्ट हैंड्स। I'll come to symbol. रिपीटिशन याद रखो, अगर एक ही वर्ड बार बार आ रहा है, एक ही लाइन में बार बार आ रहा है, दैट इज रिपीटिशन। यस, डिफरेंस एलिट्रेशन में क्या होता है, पहला लेटर सेम होगा सिर्फ। ठीक है, जैसे हर्ट हैंड्स, हर्ट हैंड, दे आर डिफरेंट वर्ड्स, बट स्टार्ट दोनों सेम से हो रहा है, एच से हो रहा है। ठीक है, दोनों स्टार्ट एच से हो रहा है, बट वर्ड्स डिफरेंट है। रेपिटेशन में क्या होगा, वर्ड सेम होगा, लाइक फार फार, तो दोनों वर्ड सेम है इसमें, तो दिस इज रिपीटिशन। जब वर्ड रिपीट हो जाए इट इज रिपीटिशन, जब सिर्फ लेटर, पहला लेटर मैच करे, दैट इज एलिट्रेशन। इट इज क्लियर, आई होप। एनाफोर आई थिंक आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। जब डिफरेंट लाइन सेम वर्ड से स्टार्ट हो, एलिट्रेशन और रिपीटिशन क्या है, हम एक ही लाइन का बात कर रहे हैं, एक ही लाइन में वर्ड सेम होगा, या एक ही लाइन में क्या होगा, वर्ड सेम लेटर से स्टार्ट होगा। एनाफोरा क्या है कि डिफरेंट लाइंस क्या होंगे, कंजेक्यूटिव लाइंस सेम वर्ड से स्टार्ट होंगे, ये डिफरेंस। ठीक है, स्माइल स्माइल स्माइलिया, दैट इज रेपिटेशन, तीनों वर्ड सेम है, दैट इज रेपिटेशन। बट अगर ये है स्लाई स्माइल, स्वीट स्माइल, so the words different है, start same letter से हो रहा है, that is alliteration. Okay, antithesis में when two opposite ideas are placed together, जब दो opposite idea एक साथ place कर दिया जाए, ठीक है, then that is called antithesis. सर अनसीन में ग्राफ वाले नहीं, ज्यादा टेंशन नहीं लेना, इट्स गोइंग टू बी इजी, पेपर विल बी इजी। जितना सैंपल पेपर में टफ है, आई डोंट थिंक इट इज गोइंग टू बी टफ लाइक दैट। ओके, तो ग्राफ आप नहीं आएगा, और आएगा भी तो ग्राफ तो यार सिंपल आता है, वो 10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड का ग्राफ नहीं आएगा, सिंपल सा आएगा जितना तुमने 6 7 8 में किया है। टू टाइनी टाइगर्स टेक, या दिस इज एग्जांपल ऑफ alliteration. नाउ अब हमने फिगर्स ऑफ स्पीच डिस्कस कर लिया, आई होप इट इज क्लियर। We will count, yeah, you can say that it is antithesis. We will count up to 12 and we will keep still. पहले तो बोल रहा है कि काम करो, तुम काउंटिंग करो, फिर बोल रहा है कि शांत हो जाओ सब कोई, तो दो अपोजिट चीज बोल रहा है एक ही बात, तो दैट इज एग्जांपल ऑफ एंटीथेसिस। नाउ लेट्स डिस्कस द क्वेश्चंस आंसर ऑफ माय मदर एट 66। इसमें याद रखना इमेजरी यूज हुआ है, सिमिली यूज हुआ है, मेटाफर यूज हुआ है, मेन यही यूज हुआ है। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन आंसर पे फोकस करता हूँ। माय मदर एट 66, क्विकली ये छोटा सा पोएम है, तो फटाफट मैं समरी बता देता हूँ। दिस इज अ पोएम अबाउट अ डॉटर, who had come to visit her mother, and now the visiting time is over, मतलब 2-4 दिन रही है, and now she is leaving her mother, and when she is leaving, she is expressing her feeling, that how does she feel. पोएटेस हैं कमला दास, और ये बेसिकली उनमें से इट इज काइंड ऑफ अ पर्सनल पोएट्री, सब्जेक्टिव पोएट्री। ये चीज याद रखना, जब कोई अपने बारे में बात करे, अपने फीलिंग के बारे में बात करे, तो उसको सब्जेक्टिव और पर्सनल पोएम बोला जाता है।
जब कोई ऑब्जर्व किया हुआ चीज के बारे में लिखे तो दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव और इम्पर्सनल। और फटाफट याद रखना, हर यू नो हर मदर, पोएटेस अपने मदर क्या है? यस, एनाक्रोनिज्म। एनाक्रोनिज्म इज समथिंग that used to happen in past, that was in fashion in past। कोई ऐसा चीज जो पास्ट में बड़ा फैशन में था बट अब नहीं है, अब लोग उसको यूज नहीं करते हैं, तो उसको बोलते हैं एनाक्रोनिज्म। जो पास्ट में फैशन में था बट अभी नहीं है, तो वैसे चीजों को बोलेंगे एनाक्रोनिज्म, वैसे रेफरेंस को बोलेंगे एनाक्रोनिज्म। नाउ रिमेंबर, पोएटेस अपनी मदर के यहां से कोची जा रही हैं, ठीक है। हर मदर इज स्लीपिंग, हर माउथ इज ओपन, नो, एंड हर फेस लुक्स लाइक एसेंट कॉर्प्स, मतलब ऐसे लग रहा है जैसे कोई लाइफ ही नहीं है, डेड बॉडी जैसा दिख रही है, ठीक है। और when she sees her mother like that, like a dead body, without any life, without any animation, without any charm, उनको बड़ा बुरा लगता है, यार मेरी मदर कैसे दिख रही है, मतलब इतनी ओल्ड हो रही है, तो she looks away। अब ये क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि why she looks other side। तो रीजन ये है कि टू टर्न अवे ऑल द नेगेटिव थॉट्स दैट वर कमिंग टू हर। जितने भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे सबको दूर करने के लिए, नहीं मेरे को नहीं सोचना इस बारे में, मेरे को नहीं सोचना है कि माय मदर हैज गॉट ओल्ड, आई डोंट वांट टू थिंक अबाउट दैट, ठीक है। टू टर्न अवे ऑल दोस नेगेटिव थॉट, शी लुक्स अवे। और जब बाहर देखती है तो उनको दो चीज दिखता है, पहला यंग ट्रीज एंड चिल्ड्रन। इन दोनों चीजों का इमेजरी क्यों यूज किया, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कॉन्ट्रास्ट करने के लिए, याद रखना, टू कॉन्ट्रास्ट बिटवीन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ। ये वर्ड याद रखना, कॉन्ट्रास्ट। डिफरेंट एज में कैसे लोग होते हैं, उनकी मदर ओल्ड है, ट्रीज यंग है, और खेल कौन रहा है, चिल्ड्रन। तो तीन जो मेन एज होता है ह्यूमन लाइफ का, उसके बारे में वो बात कर रही है, ठीक है। तो बेसिकली सी इज डूइंग कॉन्ट्रास्ट, रिमेंबर दिस, वो कॉन्ट्रास्ट करने का यस आई एम इन चेन्नई, देन व्हाट हैपेंस, they have reached the airport, again she is looking at her mother, again she is comparing। क्योंकि मदर का फेस कैसे, लेट विंटर्स मून की तरह। क्यों है लेट विंटर्स मून की तरह? क्योंकि विंटर में क्या होता है, मून बड़ा डल दिखता है ना। और विंटर क्या होता है, सीजन का भी लास्ट, ईयर का भी लास्ट सीजन होता है, सीजन साइकिल में भी लास्ट होता है। उनकी मदर भी ओल्ड है, वो भी अपने लास्ट स्टेज पे पहुंच चुकी है, और कुछ भी जो चार्म होता है, साइन होता है मून में, वो नहीं दिखता बिकॉज ऑफ फॉग एंड स्टफ। तो मदर के फेस पे भी क्या हो गया, सारा साइन और वो सब खत्म हो गया। तो क्या करिए, अपने आप को ऑप्टिमिस्टिक बनाने के लिए, नेगेटिव थॉट्स दूर करने के लिए क्या कर रही है, अपना जो फीलिंग है उसको हाइड करने के लिए सी स्माइलिंग। स्माइल क्यों कर रही है, अपना नेगेटिव फीलिंग हाइड करने के लिए, जो नेगेटिव फीलिंग्स है उसको दूर करने के लिए। सी इज टेलिंग सी यू सून अम्मा, शी इज ट्राइंग टू बिकम सी यू सून अम्मा। इट इज आयरनी, आयरनी बोल सकते हो कि आयरनी है, वैसे आई डोंट थिंक कि उतना, हाँ यहाँ पे रिपीटिशन है। ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, यहाँ पे स्माइल वर्ड क्या आ रहा है, बार बार रहा है, तो दिस इज रिपीटिशन टू डाइवर्ट हर माइंड, और टू शी डजंट वांट हर मदर टू सी दैट शी इज फीलिंग सैड और शी इज फीलिंग एंग्शियस, कि कहीं उनके मदर को कुछ हो ना जाए। एक चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया। अगर किसी को चैप्टर से डाउट होगा कुछ, फटाफट चैट बॉक्स में डालते जाना, आई विल आंसर, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज एलिमेंट्री स्कूल, वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड पोम्स, ओके। एलिमेंट्री स्कूल, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, सबसे कॉम्प्लिकेटेड पोएम है तुम्हारे सिलेबस का। तो पहले तो पोएट कौन है, फटाफट बताओ। फटाफट बताओ पोएट कौन है। आई जस्ट टोल्ड यू इन द बिगिनिंग ऑफ द क्लास, आई टोल्ड यू कि हु इज द पोएट। ओके, यहां पे एक यूज हुआ है, पता नहीं फिर मैं भूल जाऊं, यस, स्टीफन स्पेंडर, शेक्सपियर्स हेड। तो यहां पे रेफरेंस दिया जा रहा है शेक्सपियर का, ओके। तो इट्स काइंड ऑफ एन एल्यूजन, किसी और का रेफरेंस देने को हम एल्यूजन भी बोलते हैं। टायरोलीज वैली का एग्जांपल दिया गया है, तो वो भी एक तरह का क्या हो गया, एल्यूजन हो गया। नाउ इसमें क्या है कि सबसे पहले जो चीज करना, वो लास्ट का लाइन पढ़ना जो अबाउट द पोएट के बारे में है। He has concentrated on themes of social injustice and class inequality। ये दो चीज के बारे में बात किया है। सोशल इनजस्टिस, कि सोसाइटी में क्या है, जस्टिस नहीं है, रिच पीपल आर गेटिंग रिच, पुअर पीपल आर गेटिंग पुअर पुअर।
और क्लास इनइक्वालिटी की रिच और पुअर में कितना गैप है, उनको जो एमिनिटीज मिलता है, सुख सुविधा मिलता है, उसमें कितना गैप है, उसके बारे में वो बात की है। एंड पहला लाइन देखो, फार फार, अगेन रेपिटेशन, लाइक रूटलेस वीड, दिस इज सिमिली, पेपर स्विमिंग बॉय, ये फटाफट बताओ, पेपर स्विमिंग बॉय कौन सा फिगर स्पीच इसमें यूज हुआ है? तो बेसिकली क्या हो रहा है, ही इज टॉकिंग अबाउट डिफरेंट किड्स जो वहां पे रह रहे हैं, स्लम एरिया में पढ़ रहे हैं, और उनको बोला जा रहा है कि दे आर फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स, क्योंकि जो दुनिया में बाकी जो बच्चे होते हैं जैसे एनर्जेटिक होते हैं, काफी एंथुसियास्टिक होते हैं, वैसे ये बच्चे बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, ये काफी डिफरेंट है, इनमें वो एनर्जी नहीं है, एंथुसियाज्म नहीं है, वो जो चार्म होता है बचपन का वो कुछ भी नहीं है, इसलिए बोला जा रहा है फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स। यस, मेटाफर हैज बीन यूज्ड, राइट, पेपर स्विमिंग बॉय इज मेटाफर। रेड साइज आल्सो, देयर इज अ चाइल्ड विथ रेड साइज, वो भी मेटाफर हो गया, ठीक है। यहां पे एक यूज हुआ है पन। पन मतलब क्या होता है, एक ही वर्ड का दो मीनिंग निकालना, दैट इज कॉल्ड पन, PUN। कहां पे पन का यूज हो रहा है, ये बोला जाए ना, रिसाइटिंग अ फादर्स नाल डिजीज, इसको नोट डाउन कर लेना कहीं बुक में ही आप, पन। तो रिसाइट, ही इज रिसाइटिंग टू थिंग्स, एक तो लेसन रिसाइट कर रहा है, और सेकंड क्या रिसाइट कर रहा है, अपने फादर का डिजीज, वो जेनेटिक डिजीज है, नाल डिजीज, जिसमें ही ना बहुत ज्यादा ऐसे अजीब सा हो जाता है फिंगर्स फिंगर्स पे, बॉडी पे, तो दैट इज कॉल्ड पन। और बट एक और बच्चा है जो कि अभी इतना होपलेस सैड नहीं हुआ, तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कि होप है, अभी भी कुछ बच्चे हैं जिनको लेके होप है, जो अच्छा लाइफ ड्रीम कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं कि उनका लाइफ सुधर सकता है। रूटलेस वीड इज अगेन, यू मे से दैट इट इज आल्सो अ मेटाफर, बट लाइक यूज हुआ है तो वो उसको बोल सकते हो कि दैट इज सिमिलर। कौन सा होमोफोन है, ओके, नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या, साउर क्रीम वॉल्स, तो अगेन क्रीम वो क्या है, अब देखो इसको क्यों यूज किया जा रहा है, साउर क्रीम वॉल्स, टू शो सिमिलैरिटी। मैंने अभी कुछ देर पहले कॉन्ट्रास्ट के बारे में बताया था, कि डिफरेंट एजेस को कॉन्ट्रास्ट में लाया गया था, कंपेयर करने के लिए यूज किया गया था, कि बच्चों का इमेज यूज किया गया था, यंग ट्रीज का इमेज यूज किया गया था। सौर क्रीम वॉल क्यों, क्योंकि जैसा वॉल डल है ना, बच्चे भी वैसे ही डल है, बच्चों का फ्यूचर भी वैसा ही डल है, वहां पे सिमिलैरिटी दिखाया गया है। फिर डिफरेंट डिफरेंट रेफरेंसेस लिए गए हैं, शेक्सपियर का, यू नो टायरोलीज वैली का जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है, फ्लावर से पूरा ढका हुआ है, तो वो हो गया एल्यूजन, रेफरेंस दिया जा रहा है। ओपन हैंडेड मैप, ओपन हैंड मतलब ये, ओपन हैंडेड मैप का मतलब क्या हुआ, कि दुनिया को अगर तुम पावरफुल बन सकते हो तो यू कैन चेंज द वर्ल्ड, तुम जैसे चाहो वैसे इस दुनिया को चेंज कर सकते हो। बट फिर पोर्ट बोल रहे हैं कि ये जो मैप है उसको ब्लॉट कर दो। क्यों ब्लॉट कर दे भाई, पैसा लगाए खरीदे हैं यार, क्यों ब्लॉट कर दे, क्योंकि यस, संस्कृति टेलिंग नेग्लेक्टेड वॉल्स, यस, जैसे वॉल को नेग्लेक्ट कर दिया गया वैसे ही इन बच्चों को भी नेग्लेक्ट कर गया, तो वो सिमिलैरिटी है। बिकॉज पोर्ट बोल रहे हैं कि इनको ब्लॉट कर दो, मैप को फॉरवर्ड के फेंक दो, क्यों, क्योंकि ये जो मैप है इनके वर्ल्ड को रिप्रेजेंट नहीं करता, it's not truly representing their world. How? Because the map is showing a world which is full of color, which is full of riches, which is full of monuments, which is full of great people. But इनकी दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं, इसीलिए बोल रहे हैं कि उसको क्या करो, हटा दो, उसको हटाकर और क्या कर दो, उसकी जगह क्या कर दो, आई थिंक वो लाइन बाद में आया है, वेयर ऑल देयर फ्यूचर इज पेंटेड विद अ फॉग। फ्यूचर पेंटेड मतलब उनका फ्यूचर पे क्या है, फॉग है, मतलब उनका फ्यूचर क्या है, सर्टेन नहीं है, आगे क्या होना है किसी को कुछ पता नहीं है। नैरो स्ट्रीट लेड स्काई, उनका जो लाइफ है बड़ा नेचुरल लाइफ है, अननेचुरल इन द सेंस कि जो स्काई भी है उसका भी कलर क्या है, लेड कलर का है, डिफरेंट कलर है, जो नॉर्मल होता है उससे भी डिफरेंट। और इनका जो दिया, ये जो रिवर बताया जा रहा है, केप्स दिखाया जा रहा है, स्टार्स ऑफ वर्ड्स लाइक शेक्सपियर के बारे में बात किया जा रहा है, it's completely in contrast to their life. Yes, contrast again, you may say contrasting, the poet is contrasting their world with the world of man, और दोनों में कुछ भी सिमिलैरिटी नहीं है, इसीलिए बोला जा रहा है कि शेक्सपियर विकेड है, क्यों, क्योंकि शेक्सपियर उन सब चीजों के बारे में बात कर रहा है जो इन बच्चों के लाइफ में है ही नहीं।
तो वो क्या कर रहा है, बेसिकली शेक्सपियर क्या कर रहा है, ऐसे ऐसे चीजों के बारे में बात कर रहा है जो इन बच्चों के लाइफ में नहीं है, तो उनको उकसा रहा है कि ये चीजें होनी चाहिए, तेरे पास नहीं है। बार बार उन्हीं चीजों के बारे में बात करोगे तो क्या होगा, तुम्हारे मन में भी आ जाएगा कि मेरे को तो ये चीज चाहिए। इमेजिन तुम्हारा एक ग्रुप है, सारे अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहन के आते हैं, तुम्हारे पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, बट क्या होगा, अपने फ्रेंड्स को देख के क्या हो जाएगा, polluted में you may say polluted also led because polluted or because the poet wants to say that their world is a very unnatural। I mean को जो रियल वर्ल्ड है, जो ब्यूटीफुल वर्ल्ड है, उससे कोई कनेक्टेड नहीं। बार वो लोग उसी चीज के बारे में बात करते हैं, देख मैंने आज ये खरीदा है, मैंने आज ये खरीदा है, तो तुम्हारे मन में भी कहीं ना कहीं आ ही जाएगा, तो तुम भी अपने पेरेंट्स को बोलोगे, ठीक है। तो पेरेंट्स तो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो क्या होगा, कई बार मन में आके यार चुरा लेते हैं। तो शेक्सपियर इन बच्चों के लिए नेगेटिव इन्फ्लुएंस कर रहा है, क्योंकि ही इज टॉकिंग अबाउट ऑल दोस थिंग्स which are not available in the life of these kids and they cannot afford it. So what they do, they become robbers, they become thieves। एयर मतलब होता है जो वसीयत को वो करता है, क्या बोलते हैं, जैसे जो पेरेंट्स का प्रॉपर्टी है वो क्या था, वो बच्चे उसको इनहेरिट करेंगे, तो जो वो इनहेरिट करेगा उसको बोला जाता है एयर। तो वो जो बच्चा है वो क्या इनहेरिट कर रहा है, उसको अनलकी क्यों बोला गया है, क्योंकि पूरी दुनिया प्रॉपर्टी इनहेरिट करती है, बैंक बैलेंस करती है, जमीन इनहेरिट करती है, घर इनहेरिट करती है, पर वो बंदा क्या किया, वो जो छोटा सा बच्चा है वो क्या इनहेरिट किया है, अपने फादर का बीमारी। उसको वसीयत में क्या मिला है, नो अपने फादर का बीमारी, इसीलिए उसको बोला जा रहा है अनलकी है। मैप इज एन बैड एग्जांपल अगेंस्ट द सेम रीजन। मैप वो सब चीजें दिखा रहा है जो इन बच्चों के लाइफ में नहीं है, और बेसिकली उनको उकसा रहा है कि तुम लोग गलत काम करो, ये चीज दुनिया में है, तुम लोगों के पास नहीं है, तो बेसिकली क्या होगा, बार बार तुम वही चीज दिखाओगे, वही चीज बात करोगे, तो उनके मन में कहीं ना कहीं आ जाएगा कि मेरे को भी ये चीज चाहिए, तो वो लोग फिर चोरी करेंगे। इसीलिए मैप बैड एग्जाम्पल है, और शेक्सपियर इन बंदों के लिए, इन बच्चों के लिए क्या है, बहुत बुरा आदमी है। फिर इनका फिर पोवर्टी डिस्कस किया गया कि ग्लास टूटा हुआ है बट दे कैन नॉट अफोर्ड इट। फिर इतने गरीब है कि स्केयर क्रो इनके आगे फेल हो जाता है, ऐसे लग रहा है जैसे बोन क्या हो जा रहा है, बाहर निकलने को आ रहा है। एंड सो ब्लॉट देयर मैप, वही मैंने जो डिस्कस किया था, इनके मैप को ब्लॉट कर दो, हटा दो, फॉरवर्ड कर फेंक दो, यूजलेस है। इस पे किस चीज का पिक्चर डाल लो, स्लम का पिक्चर, मैप की जगह स्लम का पिक्चर डाल दो। रीजन क्या है, क्योंकि स्लम क्या है, स्लम रिप्रेजेंट्स देयर ट्रू वर्ल्ड। जो स्लम है वो इनके ट्रू वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है, वही इनका रियल दुनिया है, ठीक है। लास्ट पोएम में पोएट का टोन चेंज हो रहा है, ठीक है। अभी तक पोएट का टोन क्या था, सैड थे, पेसिमिस्टिक थे, उनको लग रहा था इनका कुछ नहीं हो सकता, इनका फ्यूचर ऐसे ही है, पैदा ऐसे जगह में हुए हैं डार्कनेस में, और पूरा फ्यूचर भी क्या होने जा रहा है, इनका ऐसे ही हो जा रहा है। बट लास्ट में क्या, एंडलेस नाइट, यस एग्जैक्टली दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, ये पैदा हुए हैं गरीबी में, मर भी जाएंगे गरीबी में। यस ईसा, आई एम कमिंग, ईसा एंड साक्षी, आई नो आई एम कमिंग टू दैट लाइन दैट ही स्टिल, ठीक है। तो बेसिकली उनको ये बोला जा रहा है कि कहाँ गया बोला, कैटाकॉम्ब क्या होता है कि अंडरग्राउंड टनल होता है, अंदर तुम मूव कर सकते हो बट बाहर नहीं निकल सकते, तो उनके लिए जो स्लम है वो कैटाकॉम्ब है, क्योंकि वो स्लम में तो फ्रीली मूव कर सकते हैं, बट उनका दुनिया वहीं तक लिमिट हो गया, उससे बाहर वो लोग नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है। एंडलेस नाइट मतलब इनका रात, इनका पूरा लाइफ क्या हो रहा है, अंधेरे में गुजर जाएगा, मतलब इनके लाइफ में कोई होप नहीं है, कोई बेटर फ्यूचर का प्रोस्पेक्ट नहीं है, पैदा हुए इस्लाम में, यहीं पे मर जाना है, लाइफ में कुछ अच्छा इनके नहीं होने वाला। लाइफ दैट स्लाइटली टर्न इनटू क्रैम्प्ड होल, मतलब इनका पूरा लाइफ क्या हो गया, वो जो क्रैम्प्ड होल है, जो क्रैम्प्ड होल किसको बोला जा रहा है, स्लम को, तो इनका पूरा लाइफ क्या हो जा रहा है, धीरे धीरे उसी में खत्म हो जाना है, ठीक है। नाउ लास्ट पैराग्राफ में पोर्ट का टोन चेंज हो रहा है, ही इज बिकमिंग ऑप्टिमिस्टिक, और बोल रहे हैं कि अगर कुछ लोग चाहें, जो ऑफिसर्स बेसिकली जो ऑफिशियल्स हैं, जो लीडर्स है, पॉलिटिकल लीडर्स है, अगर वो चाहे तो इनके लाइफ को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो चाहे तो इनको लाइफ को चेंज कर सकते हो, कैसे, टेक देम आउट फ्रॉम दिस स्लम एरिया, ब्रेक को ब्रेक मतलब टेक देम आउट फ्रॉम दिस स्लम एरिया, ब्रेक ऑल द बैरियर्स, जो इनको इस स्लम में रोक के रखा है वो बैरियर तोड़ दो और इनको बाहर निकालो यहां से। फिर क्या करो, इनको रियल वर्ल्ड दिखाओ, शो द चिल्ड्रन ग्रीन फील्ड्स, रियल वर्ल्ड दिखाओ, ठीक है। तो पहले तो इनको गुड एजुकेशन दो और रियल वर्ल्ड भी दिखाओ, पहले तो दुनिया दिखाओ कि ये बेटा
ये रियल वर्ल्ड है, जो स्लम है वो दुनिया नहीं है, वही दुनिया नहीं है, बाहर का दुनिया देखो कितना ब्यूटीफुल, सो दैट दे विल बी इंस्पायर्ड। और फिर उनको असली अच्छा एडुकेशन दो, ठीक है, उनको अच्छा एडुकेशन दो ताकि वो फिर क्या करेंगे वो बताया जा रहा है। रन अज्योर, अगर तुम उनको अच्छा एडुकेशन दोगे, अगर तुम उनको इंस्पायर करोगे, तो देयर वर्ल्ड विल रन अज्योर ऑन गोल्ड सैंड्स। अज्योर मतलब होता है ब्लू कलर। तो क्या होता है, डेजर्ट एरिया में बारिश बहुत कम होता है, आई थिंक ऑल ऑफ यू नो दैट, बहुत रेयर फेनोमिनन होता है, ठीक है। बट सेम चीज होगा कि अगर तुम इनको पढ़ाओगे तो ये भी मिरेकल्स क्रिएट कर सकते हैं। रन एज्योर मतलब ये भी जैसे बारिश होना, डेजर्ट में बारिश होना, जैसे वो काफी एक बड़ा अच्छा चीज माना जाता है, वैसे अगर इन बच्चों को एडुकेशन दोगे तो ये भी क्या करेंगे, कुछ वैसा ही अमेजिंग चीज करेंगे, जैसे डेजर्ट में बारिश होना। डेजर्ट क्या हो गया, स्लम इनके लिए डेजर्ट है, वहां पे कुछ अच्छा नहीं होता, बट अगर तुम एजुकेशन दोगे तो ये भी कुछ अच्छा करेंगे। रन देयर बुक्स नेकेड इनटू व्हाइट एंड ग्रीन लिप्स, मतलब बुक का भी नॉलेज दो, व्हाइट लिप्स मतलब बुक का पेजेस, और ग्रीन लिप्स मतलब नेचुरल वर्ल्ड दिखाओ। हिस्ट्री इज देयर्स हुज लैंग्वेज इज द सेम। और अगर जब बड़े होंगे, ये लाइन दो चार लोगों को डाउट था, हिस्ट्री इज देयर्स हुज लैंग्वेज इज सन, मतलब हिस्ट्री वही लोग क्रिएट करते हैं जो नॉलेजेबल होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। तो अगर तुम इन बच्चों को भी नॉलेज दोगे, अगर इनको भी एडुकेशन दोगे, तो ये बच्चे भी क्या करेंगे, हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं। हिस्ट्री इज देयर हुज लैंग्वेज इज सन, मतलब जो बच्चे नॉलेजेबल है, इंटेलिजेंट है, वहीं जाके आगे इंटेलिजेंट और आगे हिस्ट्री क्रिएट करते हैं। तो अगर तुम इन बच्चों को, स्लम के बच्चों को भी एडुकेट करोगे, तो ये भी क्या कर सकते हैं, हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं। दिस इज द मीनिंग। तो वी हैव डिस्कस्ड द पोएम। सौरभ एक बार फिर से वीडियो देख लेना, ये वीडियो डिलीट नहीं होगा, तुम यहीं पे रहेगा, तो फिर से देख लेना, जिस पार्ट में मैंने डिस्कस किया है उसको फिर से देख लेना। कीपिंग क्वाइट बाय पेब्लो नेरूडा, उसका थीम क्या है, बेसिकली पोएट क्या चाहता है कि दुनिया में शांति हो, पीसफुलनेस हो, और पीसफुलनेस के लिए क्या करना है, सिंपल सा मेथड है, सब कोई शांत हो जाए, कुछ देर के लिए सब कोई शांत हो जाए, बस यही एक सिंपल मेथड है। उस दो चीज बेसिकली टॉक्ड अबाउट टू मेन थिंग्स इन द पोएम। फर्स्ट इज यूनिवर्सल पीस एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड। पीस और ब्रदरहुड के बारे में बात। लेट देयर टंग्स रन नेकेड, इनको एकदम फ्री एडुकेशन दो, अच्छा क्वालिटी का एडुकेशन दो। लेट देयर टंग्स रन नेकेड इन, इसका मतलब यही हुआ कि एकदम अच्छा क्वालिटी का एडुकेशन दो, कोई बैरियर नहीं होना चाहिए उनके एडुकेशन में, उनको फ्री एंड फेयर एडुकेशन मिलना चाहिए। दैट्स द मीनिंग। या और उस पोएम में क्या बोले कि इंट्रोस्पेक्शन करो, इंट्रोस्पेक्शन से क्या होगा, तुम्हारा लाइफ इंप्रूव होगा, और जब तुम्हारा लाइफ इंप्रूव होगा तो क्या होगा, दुनिया भी सही हो जाएगी। तो वो यही दो चीज के बारे में वो बात किए हैं उस पोएम में, ठीक है। और कैसे करना है, 12 तक काउंट करना है, किसी लैंग्वेज में बात नहीं करना। लैंग्वेज में बात क्यों नहीं करना है, कोई बताओ फटाफट, तब तक मैं आगे बताता हूं। किसी भी लैंग्वेज में बात नहीं करना है, शांत हो जाना है, आर्म्स को मूव नहीं करना है, शांति से बैठ जाना है। आर्म्स का दो मतलब हो सकता है, ये लिटरल आर्म्स, और आर्म्स मतलब बंदूक होता है, आर्म्स एंड एम्यूनिशन। तो ना लड़ाई झगड़ा करना है, ना किसी से वर्बल आर्गुमेंट करना, चुपचाप शांति से बैठ जाना, यही दो चीज यही करना, ठीक है। यस, लैंग्वेज का यूज, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर क्रिएट करता है, ठीक है। बिकॉज आई एम इन साउथ इंडिया एंड आई हैव सीन पीपल बीइंग पॉजेसिव बिकॉज ऑफ देयर लैंग्वेज। मतलब लैंग्वेज के लोग बहुत पॉजेसिव होते हैं कि नहीं मैं ये लैंग्वेज नहीं बोलूंगा, मेरा मदर टंग ये है तो मैं यही बोलूंगा, ठीक है। तो सपोज आई एम टॉकिंग इन हिंदी, पीपल विल स्टार्ट जजिंग, अच्छा ये नॉर्थ से है। सपोज हम नॉर्थ में कोई साउथ वाला आता है, अगर वो अपने लैंग्वेज में बात करता है तो क्या होता है, हम फिर उसको जज करने, अरे ये तो साउथ का है। तो लैंग्वेज क्रिएट्स बैरियर, इसलिए हमने क्या करना है, इसलिए पोर्ट क्या बोला कि कोई भी लैंग्वेज में बात, साइन लैंग्वेज कुछ नहीं, शांति से बैठ जाओ, नहीं तो दो थप्पड़ मरे। दैट इज व्हाट द पोर्ट इज टेलिंग बेसिकली, ठीक है। और फिर क्या होगा, जब सब कुछ शांत हो जाएंगे तो विल बी इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। सडन स्ट्रेंजनेस क्यों, क्योंकि ये जो मोमेंट क्रिएट होगा वो आज तक ऐसा कभी हुआ ही नहीं था, ठीक है, कि सब कुछ शांत है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा है, कोई वर्बल आर्गुमेंट नहीं हो रहा है, ऐसा मोमेंट आया ही नहीं था। तो वो बहुत ही एक्सोटिक मोमेंट होगा, क्योंकि हमने आज तक ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया।
और स्ट्रेंज क्यों होगा? सेम रीजन, क्योंकि हमने आज तक ऐसा कुछ देखा नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं किया है। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स, यहाँ पे सिंबल है ये। वी आर नॉट लिटरली टॉकिंग अबाउट फिशरमैन। फिशरमैन क्या करते हैं? अपने फायदे के लिए वेल्स को मार देते हैं। तो हमें वो काम नहीं करना है, अपने फायदे के लिए दूसरों को हर्ट नहीं करना है। मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट इज हर्ट। हम कई बार क्या करते हैं? ऐसा ऐसा काम करते हैं जिससे हमें खुद को ही हर्ट होता है, बट हमें रियलाइज ही नहीं होता। तो यहाँ पे पोर्ट क्या बोला कि इंट्रोस्पेक्शन करो, शांति से बैठो, अपने लाइफ के बारे में सोचो कि क्या कर रहे हो तुम, जो काम कर रहे हो सही काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो ना। कहीं ऐसा तो नहीं कि द वे यू आर लिविंग योर लाइफ उससे तुम्हारा ही नुकसान हो रहा हो। तो तुमको ये देखने का जरूरत है। इंट्रोस्पेक्शन का, इंट्रो मतलब अंदर का, इंस्पेक्शन मतलब जांच, खुद का जांच पड़ताल करो कि तुम जो काम अपने लाइफ में कर रहे हो वो सही कर रहे हो या नहीं। जैसे कल एग्जाम है और तुमने पढ़ाई किया है या नहीं, आज खुद ही रियलाइज होगा। आज तो इंट्रोस्पेक्शन करने का भी जरूरत नहीं है, बट हमेशा हर वीक हर डे, अगर डे नहीं पॉसिबल तो वीक पे तो शांति से बैठ के सोचना ही चाहिए कि मैं जितना पढ़ाई कर रहा हूँ सफिशियंट है या नहीं। ग्रीन वॉर का दो मतलब हो सकता है, एक तो कि फ्रेश वॉर, नया नया वॉर स्टार्ट करना, और सेकंड होता है वॉर अगेंस्ट नेचर। दो मीनिंग हो सकता है। वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ का मतलब वो पुराना मेंटेलिटी छोड़ देंगे, लड़ाई झगड़े वाला जो लोग था ना कि हमेशा लड़ाई झगड़े में बिलीव करते हैं कि लड़ाई करके हम ये जीत जाए, उनको अपना बात मनवा ले, तो वो कपड़ा छोड़ देना, मतलब वो पुराना मेंटेलिटी छोड़ के एक नया मेंटेलिटी अडॉप्ट कर लेना, क्लीन क्लोथ पहनना जिसमें लड़ाई झगड़ा वाला मेंटेलिटी नहीं है। फिर बोले कि पोर्ट बोले कि टोटल इनएक्टिविटी नहीं, ऐसा नहीं कि कंबल डाल के सो गए, वो नहीं करना है, मर नहीं जाना है। टोटल इनएक्टिव मतलब डेथ भी हो सकता है, तो वो सब नहीं करना, मरना वरना नहीं है, सोना भी नहीं है। शांति से बैठ के दूसरे को सुनो, इंट्रोस्पेक्ट करो, अपने बारे में सोचो, दूसरे के बारे में सोचो, उसको सुनो, जो सामने वाला कह रहा है उसको भी सुन लो, सिर्फ अपना ही बात मत बोलो। आराम से बैठ जाओ, सुनो, अपने लाइफ के बारे में सोचो। लाइफ इज वॉट इट इज अबाउट। मुझे याद है इस लाइन पे मैंने क्लास में एक एक घंटे का लेक्चर दे दिया था। लाइफ इज अबाउट, लाइफ इज व्हाट, लाइफ इज अबाउट लिविंग। लाइफ जियो, है ना। वो लड़ने में, लड़ना वड़ना नहीं है। लड़के बोलते हैं कि नहीं मेरे को शहीद हो जाना, भाई शहीद नहीं होना भाई, इतना भी पेट्रोटिज्म ठीक नहीं। जितना तुम फायदा दुनिया का मर के कर सकते हो, उसका फायदा तो ऑल द टाइम, किसी भी टाइम तुम जी के कर सकते हो। भाई क्यों मरना, जी लो, अच्छे से जी लो, मरना नहीं है। दिस इज द मेन पॉइंट, ठीक है। ऐसा नहीं कि गए कि बॉर्डर पे गए और AK-47 चलाए जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं कि अरे सीना ताड़ के मारो गोली में, शौर्य चक्र मिलेगा मुझे, वो सब नहीं करना है ना। क्योंकि हमारे लाइफ जब तक हम जिंदा हैं, हम बहुत बेनिफिट कर सकते हैं लोगों का। तो जीना है, लाइफ जीने के लिए मिला, इसको अच्छे से जीना। आई वॉन्ट नो ट्रक विद दैट। मैं नहीं, पोट क्या बोलेंगे, मैं नहीं चाहता कि वॉर्स हो और वॉर में लोग पूरा क्या हो जाए, मर मर के। ट्रक देखते हो ना तुम, मूवीज में भी देखे, उनका डेड बॉडी को ट्रक पे लाद के ले जाते हैं। तो पोएट डजंट वांट दैट। पोएट को वो सब चीजें नहीं चाहिए। फिर क्या बोल रहे हैं, अगर हम शांत हो जाए, शांत क्यों होना है? क्योंकि इंट्रोस्पेक्शन करना। तो ये जो हमारे लाइफ में जो सैडनेस है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अच्छे समझना। सैडनेस क्यों है सबके लाइफ में? क्योंकि हम अपने आप को समझ ही नहीं पाते हैं। अगर मैं शायद पूछूं कि तुम 5 चीजें बताओ जो तुम्हें हमेशा हैप्पी करती है, तो बहुत सारे लोग, बड़े लोग, बच्चों में तो थोड़ा बहुत है भी, बड़े लोग नहीं बता पाएंगे कि 5 चीजें क्या उनको खुश रखती है। बस हम अपना लाइफ क्या हो रहा है, मैकेनिकल वे में जिए जा रहे हैं, उस वे में जिए जा रहे हैं हम, जिससे हमको कोई हैप्पीनेस ही नहीं मिल रहा। बट जब शायद आराम से बैठ के सोचेंगे, है ना, कि मैं अपना जो लाइफ जी रहा हूँ सही जी रहा हूँ या नहीं, तो शायद वो जो सैडनेस है वो हम खत्म कर सकते हैं। और ये चीज हमें अर्थ भी सिखा सकता है कि अगर तुम शांति से रहोगे, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा ग्रोथ रुक जा रहा है। जैसे रात का जब टाइम होता है तो ऐसे लगता है सब कुछ डेड हो गया, सब कुछ साइलेंट है, उसी समय नेचर सबसे ज्यादा ग्रो करता है। जब शांत है तो सबसे ज्यादा ग्रो कर रहा है। जब ऑटम का सीजन आता है तो जब पेड़, जब सारा ट्रीज वो सारा लीव शेड कर देता है तो लगता है कि ट्री तो मर गया है, बट उसके बाद जो उसका ग्रोथ होता है वो ट्रेमेंडस होता है। तो ये नेचर से सीख सकते हैं हम, अर्थ से सीख सकते हैं कि शांत रहने का मतलब ये नहीं होता कि तुम्हारा ग्रोथ कम हो जाएगा। शांत रहोगे, उसके बाद ग्रोथ देखो तुम्हारा और तेजी से होगा और फास्ट होगा। तो परहैप्स ये हम अर्थ से सीख सकते हैं कि जब सब कुछ शांत होता है, जब लगता है कि सब कुछ डेड है, उसी समय सबसे ज्यादा ग्रोथ होता है।
फिर रिपोर्ट क्या बोल रहे हैं इतना बकवास करने के बाद, अरे यार मैंने तो बोला था शांत रहने के लिए, अब मैं शांत होता हूँ, तुम लोग भी जाओ, अब मैं बकवास बंद करता हूँ, तुम कीप क्वाइट रखो, मैं जा रहा हूँ, मैं भी इंट्रोस्पेक्शन करूंगा, तुम भी इंट्रोस्पेक्शन करो, ठीक है, टाटा बाय बाय, कोर्ट बोल के निकल जा रहे हैं, ठीक है। अब हम रिवाइज करेंगे द थर्ड लेवल, ठीक है, ये लास्ट चैप्टर होगा आज, ठीक है, थर्ड लेवल में बेसिकली क्या है, ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर बोल सकते हो, साइंस फिक्शन नहीं बोल सकते बिकॉज बस इमेजिन कर रहा है, रियलिटी में वैसा कुछ टाइम मशीन मशीन डेवलप हुआ नहीं है, तो इट्स बेसिकली साइकोलॉजिकल ड्रामा बोल सकते हो। इसमें कैरेक्टर होता है चार्ल्स, जो क्या होता है पहुंच जाता है थर्ड लेवल पे। ना ये थर्ड लेवल क्या है, कौन सा स्टेशन होता है, फटाफट मेरे को कोई नाम बताओ, आई एम मिसिंग द ग्रैंड सेंट्रल, आई थिंक दैट इज द नेम। वहां पे क्या होता है, दो लेयर होता है उस स्टेशन पे, क्या होता है ना, दो लेयर, जैसे अगर तुम मेट्रो स्टेशन पे जाते हो तो शायद देखोगे कि दो लेयर बना होता है, अपर लेयर जहां से दो जगह से ट्रेन आती है, वहां पे दो लेयर बना होता है, ठीक है, बट वो बंदा तीसरे लेयर पे पहुंच जाता है, ठीक है, जो कि एक्सिस्ट ही नहीं कर सकता, ठीक है। तो वो क्या करता है, ऑब्वियस स्टेप, ये एक लाइन है कि ऑफ कोर्स आई टुक द ऑब्वियस स्टेप, तो ऑब्वियस स्टेप क्या होता है, जो जाके साइकेट्रिस्ट से मिलता है, साइकेट्रिस्ट उसका फ्रेंड होता है, तो अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड से मिलता है, और उसका फ्रेंड क्या एक्सप्लेन करता है कि ये तो तुम्हारा डे ड्रीमिंग था, डे ड्रीम विश फुलफिलमेंट करके कुछ बोलता है, ठीक है, कि तुम उस लेवल, तुम बस डे ड्रीमिंग कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं था, तुम अपनी लाइफ में सैड हो, हैप्पी नहीं हो, इसलिए तुम इमेजिन कर रहे थे कि तुम थर्ड लेवल पे पहुंचे हो, तुम रियली में नहीं पहुंचे थे, यू आर जस्ट इमेजिनिंग, ठीक है। तो उसकी वाइफ गुस्सा हो जाती है कि क्या मतलब, आई एम नॉट कीपिंग माई हस्बैंड हैप्पी, ठीक है, और भाई साहब अगर लड़की ऐसा स्टेटमेंट बोल दे तो चुपचाप मुंह बंद करके भाग जाना चाहिए वहां से, ठीक है। अगर वाइफ बोल रही है, अगर वाइफ के सामने तुम बोल रहे हो कि तुम्हारा हस्बैंड खुश खुश नहीं है, बेटा गए तुम, तो उसकी वाइफ भी वही बात बोल रही है, ठीक है। वाह, सारे हॉस्टल से यूज कर रहे हो, ठीक है, या लड़की का चक्कर बाबू भैया, लड़की का सेम चीज हो रहा है, तो वो बोलते नहीं नहीं भाभी जी ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि ये आपकी वजह से हैप्पी नहीं, वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ ही सैड बिकॉज दुनिया में इतना सारा प्रॉब्लम हो रहा है, वर्ल्ड वॉर हो रहा है, दुनिया में किसी को पता नहीं कि भगवान है भी या नहीं है, ये सब कुछ भी आइडिया नहीं है हमें, बहुत ज्यादा एंजाइटी है, बहुत ज्यादा टेंशन है, क्या होने वाला क्या नहीं है कुछ भी नहीं पता हमें, ठीक है। तो इसीलिए ये सैड है, और इसीलिए इसने ये ऐसा कुछ इमेजिन कर लिया था इसने। फिर वो ज्यादा आर्गुमेंट नहीं करता, फिर वो उसका एग्जांपल देता है, उसका दोस्त जो साइकियाट्रिस्ट होता है, कि जो तुम स्टैम्प कलेक्ट करते हो, फटाफट कोई चैट बॉक्स में बताओ स्टैम्प कलेक्शन के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है, ठीक है। अ, कि जो तुम स्टैम्प कलेक्ट करते हो वो भी वो क्या है, एक टेम्पररी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, दे हैव यूज्ड दिस टर्म टेम्पररी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, कि जब तुम सैड होते हो, जब तुम खुश नहीं होते, तुम क्या करते हो, अपना ध्यान कहाँ डाइवर्ट कर लेते हो, तुम लोग बकवास बंद करो, पढ़ाई करो सब, कि तुम लोग कहाँ ध्यान देते हो, तुम क्या करते हो, स्टैम्प कलेक्शन करने लगते हो, ठीक है। जब भी तुम खुश नहीं, तुम अपना दिमाग, तो वो जो तुम्हारा स्टैम्प कलेक्शन है वो भी सेम चीज है, ठीक है, वो भी सेम चीज है। तो आज भी तुमने सेम चीज किया, अपने आप को रियलिटी से डाइवर्ट करने के तुमने इमेजिन कर लिया, ठीक है, ये क्या है ये, ठीक है। फिर वो सोचने लगता है उसके बारे में कि थर्ड लेवल की ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन क्या है, ही इज कंपेयरिंग दैट विद द ट्री, जैसे ट्री बढ़ते जाता है, वो क्या है, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन भी क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, कैसे ट्री जैसा सिमिलर, जैसे ट्री में नया ब्रांचे जाता है, नया लीव्स आते जाता है, वैसे इसमें क्या हो रहा है, स्टेशन पे नया नया कॉरिडोर ऐड हो रहा है, नया नया स्टेयर्स ऐड हो रहा है, नए नए टनल्स बन रहे हैं, तो वो भी बढ़ रहा है, बट ये बात उसने नहीं बताया, ये बात उसके मन में आया, सोचा उसने, बट उसने अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को नहीं बताया, कि उसको लगा वो भाई, मैंने तो सोचा था ये इस लेवल का पागल है, ये तो इस लेवल का पागल हो चुका है, ये क्या बोल रहा है कि एक नया कॉरिडोर बन रहा है, नया टनल बोल रहा है जो ग्रैंड वो सेंट्रल पार्क तक जाएगा, ये तो कुछ ज्यादा ही पागल हो गया है, ठीक है। तो इसीलिए उसने अपने आप को नहीं बताया, अपने अपने जो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड था उसको नहीं बताया। फिर क्या हुआ कहानी में, फिर वो बता रहा है कि मैं बड़ा सिंपल आदमी हूँ, फिर बताता है कि मैं कैसे थर्ड लेवल पे पहुंचा, क्या देख के उसको कंफर्म हुआ, कैसे उसने कंफर्म किया कि वो थर्ड लेवल पे आया, पास्ट में चला गया है, क्या देखे फटाफट चैट बॉक्स में बताओ,
कि उसने क्या ऐसा देखा, वो जाता है जब उस लेवल पे, थर्ड लेवल पे, फर्स्ट लेवल पे गया है, सेकंड लेवल पे गया है, सेकंड लेवल पे उसने एक कॉरिडोर लिया है, कॉरिडोर टर्न होते गया है, नीचे चला गया है, फिर उसको लगता है कि यार लगता है मैं अभी सेकंड लेवल पे हूँ, बट जब वहां पे पहुंचता है तो उसको चीजें डिफरेंट दिखती है, नो, पुराने स्टाइल का, नो, जो लाइट है वो गैस वाला जल रहा है, स्पिटून्स है थूकने के लिए जो होता है वो बना हुआ है, पुराने तरह का लोग का जो ड्रेसिंग सेंस है वो काफी डिफरेंट है, ठीक है। तो उसको थोड़ा बहुत शक हो जाता है कि लगता है कि मैं पास्ट में आ गया। तो कंफर्म करने के लिए यस, न्यूज़पेपर वाले के पास जा रहा है, न्यूज़पेपर का नाम है वर्ल्ड, जो कि प्रेजेंट टाइम में नहीं चलता था, बट वो देख रहा है कि ये तो बिक रहा है, तो सोचता है यार ये तो बंद हो गया कब का। फिर वो डेट देखता है, डेट फटाफट बताओ कौन सा ईयर उस पर मेंशन है, फिर वो देखता है कि वो तो 19th सेंचुरी का न्यूज़पेपर बिक रहा है, ठीक है। तो उसको पक्का कंफर्म हो जाता है कि वो पास्ट में जा चुका है। तो वो क्या करता है, पहला चीज हमें कैसे पता चलता है कि वो उसका इमेजिनेशन है, क्योंकि जब तुम्हारा इमेजिनेशन, अगर तुम सच में अगर तुम पास्ट में चले जाओ तो तुम घबराओगे पहले, यार अब ये क्या हो रहा है मेरे साथ, कैसे हो रहा है ना। मेरे जैसा आदमी मटन दुकान पे पहुंचेगा, अरे यार 1894 में तो 1 रुपए किलो मटन मिलता होगा, खरीद के खाते हैं, बट थोड़ा देर के लिए तो मैं भी नर्वस हो जाऊंगा यार कि ये पास्ट में कैसे आ गया मैं। बट वो बंदा क्या होता है, नर्वस बिल्कुल नहीं होता, वो टिकट काउंटर पे चला जाता है 2 टिकट खरीदने के लिए गेल्सबर्ग के लिए। और किसको लेके जा रहा है, 2 टिकट क्यों, एक अपने लिए एक वाइफ के लिए। ये तो 100% प्रूफ हो जाता है यहाँ पे कि ये उसका इमेजिनेशन है, क्योंकि कोई भी मैन अगर उसको भागना हो तो अकेले भागेगा, वाइफ को लेके कभी नहीं भागेगा। बोलेगा मुसीबत को यहीं छोड़ दो, पास में मैं तो चला मस्ती कर दे। वाइफ को लेके कौन जाता है यार, पागल। ये बोल रहा है कि मैं वाइफ के लिए टिकट खरीद रहा हूँ। तो ये तो यहीं पे मेरे को पूरा विश्वास हो गया था कि ये इसका, दिस इज जस्ट पास्ट पार्ट ऑफ हिज इमेजिनेशन, ऐसा कुछ रियल में हुआ नहीं था, ठीक है। तो 2 टिकट खरीद, बट जब पैसा देता है तो फिर बोलता है यार ये यार, यू नो पैसा तो उस समय का पुराना दूसरे डिजाइन का होता था, वहां भी कोई मोदी जी आए हुए थे, नोट चेंज करके चले गए थे, तो नोट चेंज हो गया था, है ना। तो बोलता है कि ये तुम मेरे को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे, आर यू ट्राइंग टू स्किन मी, यू विल नॉट गेट फार, जो टिकट बेचने वाला क्लर्क होता है वो बोल रहा है, ठीक है, कि बहुत बुरा फंसोगे। तो फिर वो क्या होता है, भाग जाता है, बोलता है कि भाई 19th सेंचुरी और 21st सेंचुरी हो, जेल कहीं का अच्छा नहीं होता, मेरे को जेल नहीं जाना। और फटाफट बताओ कहाँ का टिकट खरीद रहा था वो, और क्यों खरीद रहा था, फटाफट कोई बताओ। फिर ऐसे वो थर्ड लेवल पे पहुंचा होता है, फिर काफी वो फिर क्या होता है, अपना पैसा वैसा एक्सचेंज कर लेता है, ठीक है। उसको अब बोलता है कि नो ओल्ड करेंसी लेके जाऊंगा। तो पता नहीं कितना पैसा वो चेंज करता है, कोई बताओ फटाफट चैट बॉक्स में, कितना करेंसी अपना चेंज कराया होता है, $200 या $300 अपना ले आके या चेंज करा देता है पुराने करेंसी में। यस, इलिनॉइस गेल्सबर्ग, क्योंकि वहां पे उसके दादाजी रहा करते थे, ठीक है। और वो दादाजी उसको डिस्क्राइब करते थे कि गेल्सबर्ग इलिनॉइस कैसा था, तो उसको शुरू से ही था कि काश मैं उस टाइम पे रह पाता, इसीलिए वो गेल्सबर्ग इलिनॉइस जाना चाहता, कि उसको उसका आइडिया उसको बड़ा चीज पर, यस $300, और उसको $200 मिलता है पुराने करेंसी में, बट फिर भी वो चिल्ल है। $100 का नुकसान हो गया, बट फिर भी चिल्ल है, क्यों, क्योंकि भाई उस समय तो $200 में काफी कुछ मिल जाएगा, $200 काफी है, तो इसीलिए उसको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस कि उसकी वाइफ भी थोड़ा परेशान हो जाती है जब वो ये सब काम करता है, वो उसको कसम वसम देती है, ठीक है, कि यार अब तुम खोजना वोजना बंद करो, ठीक है, तुम ये थर्ड लेवल पे खोजना बंद करो, और तुमने तो करेंसी भी बर्बाद कर दिया। और वो बेचारा जब खोजने गया थर्ड लेवल करेंसी चेंज करा के, तो उसको मिला नहीं। बट कुछ दिन बाद क्या हो रहा है, राइटर क्या बोल रहा है कि अब मैं और मेरी वाइफ दोनों ढूंढ रहे हैं थर्ड लेवल। भाई अभी तो वाइफ बोल रही थी कि तुम मत ढूंढो, तो ऐसा क्या, एक्चुअली उनको क्या हुआ था, नाउ कम्स अ रेफरेंस ऑफ फर्स्ट डे कवर। फर्स्ट डे कवर क्या होता है, मेरे को किसी ने बताया नहीं कि क्या बोलते हैं, स्टैम्प कलेक्शन को क्या बोलते हैं। जो लोग स्टैम्प कलेक्ट करते हैं वो क्या करते हैं, जैसे सपोज आज एक स्टैम्प रिलीज हुआ, आज के दिन पहला दिन रिलीज हुआ है, तो वो क्या करेंगे, वो एक एनवलप लेंगे, उसके अंदर एक ब्लैंक पेपर डालेंगे, ठीक है, और वो जो फर्स्ट डे जो स्टैम्प रिलीज हुआ उसको वहां पे लगाएंगे,
पे मुहर लगाएंगे तो मुहर के साथ डेट भी आ जाएगा और खुद को मेल कर देते थे, खुद को भेज देते थे। ठीक है, क्यों? उससे क्या होगा, उनके पास वो लेटर भी आ जाएगा, उस पे मुहर भी लगा हुआ है, डेट सर्टिफाइड हो जाएगा कि इन्होंने उसी दिन खरीदा है, फर्स्ट डे खरीदा है। तो वैसे वाले को हम बोलते थे, वैसे वाले को बोला जाता है फर्स्ट डे कवर। फर्स्ट डे कवर, उसके अंदर लेटर होगा बट वो ब्लैंक होता है, रिमेंबर। बट वो क्या हो गया, एक दिन वो अपना स्टैम्प कलेक्शन देख रहा था और अचानक से उसको एक फर्स्ट डे कवर मिला जो होना नहीं चाहिए था। उसके ग्रैंडफादर को एड्रेस था, उसके अंदर एक रियल लेटर रखा हुआ है। नॉर्मली फर्स्ट डे कवर क्या होता है, ब्लैंक होता है, बस उसमें एक लिखा हुआ लेटर। और कौन वो लेटर लिखा है? कोई सैम नाम का बंदा है जो कि उसको लेटर लिखा है। और वो क्या बोल उसमें बोला है कि देख यार, तुम लोग ढूंढना कंटिन्यू करो थर्ड डे, सॉरी, थर्ड लेयर, क्योंकि मैं पहुंच गया हूं वहां पे। नो, मैं थर्ड लेवल पे मैं पहुंच गया हूं। यस, फिलैटली, वेरी गुड, फिलैटली। कलेक्शन ऑफ स्टैम्प इज कॉल्ड, कलेक्टिंग स्टैम्प इज कॉल्ड फिलैटली। ये वर्ड याद रखना। तो वो क्या होता है, वहां पे पहुंच जाता है, सॉरी, फिर वो लेटर देखता है तो उस लेटर में उसका कोई फ्रेंड, वो लिखा होता है, वो सैम नाम का कोई फ्रेंड है, उसको बोला होता है कि तुम कंटिन्यू करो ढूंढना। ठीक है, मैं पहुंच गया हूँ, कोई गाना गा रहा है, कोई बड़ा प्यारा सा गाना गा रहा है, लोग सिगार स्मोक कर रहे हैं, बड़ा टेंशन फ्री लाइफ है यहाँ पे, सब कुछ पीसफुल है ना। वो गाना है ना, कोई भूत वाला मूवी का, यहाँ पे सब शांति शांति है। तो वो कुछ वैसा ही डिस्क्राइब करता है, यहाँ पे सब तो ये लोग कंटिन्यू कर देते हैं। और क्यों कंटिन्यू? क्योंकि जो लेटर लिखा है वो कौन है? सैम नाम का बंदा है। और सैम कौन है? इनका साइकेट्रिस्ट था, जो कि बोला था ना कि तुम डे ड्रीमिंग करते हो। अभी जो एंडिंग है ये माइंड बॉगलिंग है। कैसे? वो लेटर कैसे लिख सकता है? ये तो पॉसिबल है ही नहीं किसी के लिए टाइम में ट्रेवल करना, पास्ट में जाना। और वो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड कैसे पहुंच गया पास्ट में? या लेमोनेड के लिए बुलाए थे? ठीक है, पता नहीं लेमोनेड के लिए कौन बुलाता, बुलाना है तो यार अमेरिका है, थोड़ा बियर वियर पे बुलाओ, क्या लेमोनेड पे बुला दिए कंजूस लोग, पक्का मरवाड़ी होंगे। तो वो लोग क्या करते हैं, एक्चुअली हुआ क्या है कि ये पूरा उसका इमेजिनेशन है। जो सैम है वो भी इमेजिनेशन है, मे बी उसकी वाइफ भी इमेजिनेशन है, ये सारा इमेजिनेशन है। तो अपने आप को प्रूव करने के लिए कि सच में थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है, वो क्या किया है, खुद ही को मे बी लेटर लिख के खुद ही को पोस्ट कर दिया है, खुद ही इमेजिन कर रहा है, ये सारा चीज होता है। तो एवरीथिंग इज जस्ट हिज इमेजिनेशन। ठीक है, ये होता है उस चैप्टर में। नाउ अब क्या करोगे तुम लोग, जिसको जिसको डाउट है वो फटाफट पूछ लो। ठीक है, मैं तब तक फटाफट टिप्स बता देता हूं। ठीक है, जस्ट अ सेकंड। सीबीएसई का सैंपल पेपर निकाल लो सब कोई। लिटरेचर पार्ट। अब देखो, ये जैसे एक क्वेश्चन है, डाउट वाले तब तक तुम लोग चैट बॉक्स में डालते जाना, आई विल सी एंड आई विल आंसर इन अ मिनट। विच ऑप्शन ऑफ द अंडरलाइन फ्रेज apply the same poetic device used in the line rat's eyes? Rat's eyes, रेड साइज में, अब बताओ रेड साइज में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है, फटाफट बताओ। अब चार ऑप्शन दिया हुआ है, अब बताना है कि सेम किस में यूज हुआ है। ठीक है, तो अब देखो, पहला ऑप्शन है ही सेट अप लाइक अ क्लैम। तो लाइक अ क्लैम तो होगा ना, क्योंकि लाइक यूज हो रहा है, ये तो सिमली हो गया। ठीक है, रेड साइज इज नॉट पर्सोनिफिकेशन, इट इज मेटाफर। रेड्स का तो आइज होता ही है, हमारा ही थोड़ा आइज होता है। सेकंड तो ये तो होगा नहीं, पहला ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया। सी रन्स एज स्विफ्ट एज, एज स्विफ्ट एज, इसमें भी एज यूज हो रहा, तो ये भी सिमिली हो गया। ही इज कंसिडर्ड द ब्लैक शिप ऑफ द फैमिली। ब्लैक शिप, किसी बंदे को ब्लैक शिप से कंपैरिजन किया जा रहा है विदाउट यूजिंग एज और लाइक। ना एज यूज हुआ है ना लाइक यूज हुआ है, और कंपैरिजन क्या रहा है, मतलब ये सही आंसर है। ठीक है, तो ऐसे तुमने आंसर पहले क्या करो, पहले तो एकदम क्रॉस कर दो कि ये आंसर तो ऑप्शन बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन देखो, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। द टॉल गर्ल्स हेड इज वेड डाउन ड्यू टू द, उसका सर झुका हुआ। ऑप्शन क्या हुआ, इफेक्ट ऑफ डिजीज।
तो हमने तो ये कहीं नहीं दिखा था कि वो लड़की बीमार है, लड़का बीमार है। लड़की तो बीमार नहीं थी, तो ये एकदम खत्म हो गया। नीड फॉर कंसंट्रेशन, भाई स्कूल में पढ़ाई तो हो तब तो वो कंसंट्रेट करेगी, ये भी कंसर्न। डिजायर टू रिमेन अननोटिस, वो नहीं चाहती है कोई नोटिस करे, मे बी, हो सकता है, तो ये एक पॉसिबिलिटी है। फिर ऑप्शन है बर्डन्स ऑफ पोवर्टी। तो हमने क्या पढ़ा है कि पूरा पोएम क्या है, किस चीज से रिलेटेड है, पोवर्टी से ही रिलेटेड है, तो ये ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। ठीक है, तो ऐसे क्या करना, पहले एलिमिनेट करो और फिर क्या करो, जो तुमको सबसे बेस्ट लगे उसको चूज कर देना। ठीक है, दिस इज हाउ यू हैव टू डू दैट। Okay, I'm ending the class. We have run for almost 1.5 hour. अगर डाउट होगा, स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन पुट इट इन चैट बॉक्स। एक बार अगर तुम जो लेट से ज्वाइन किए हो वो तुम फिर से वीडियो देख सकते हो, इट विल बी देयर। ठीक है, एंड ठीक है, एंड अगर डाउट होगा तो यू कैन पुट इट इन कमेंट, यू कैन शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स आल्सो, दोज हु आर इन ग्रेड 12। ठीक है, चलो, ये शायरी किसको सुनना है भाई, मैं तो क्या मिर्जा गालिब दिख रहा हूँ, शायरी सुना दूं। ओके, सो दैट इज गोइंग टू बी ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो। ठीक है, डोंट ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, एग्जाम इजी होता है सीबीएसई का। ठीक है, ओके, बाय बाय।